Everyone, welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in my previous videos I have covered all the tone in register. Now it's time to do some practice and learn learn some directed writing patterns or some grammar topics and some tricks. So let's start. So I'm starting it with the letter. Okay. Okay, I will give you the small review in this video, and inshallah in my next video I will start teaching you guys about some grammar topics, some pattern, and maybe a sample. Let's start it. So here is a writing paper section A, directed writing. Okay, and today we are starting in formal letter and email writing. Okay, so let's start it. It also referred to as a friendly letter. Sorry, friendly letter and casual emails. They are written to friends or relatives. The most important thing is that कि informal letter, ठीक है? I know it's been years कि आप English पढ़ते हुए आ रहे हैं. छोटी क्लासेस में जो है ना आप when you guys were toddler आप लोग लेटर लिखते हुए आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड दिस मिस्टेक कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस ही नहीं कर पाते. ठीक है, तो अपने जहन में बिठा लो कि इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली और कैजुअल. ठीक है, कैजुअल कम्युनिटी. ओके, they are written in personal fashion. You can write to anyone with whom you have a non-professional relationship, conveying message, news, giving advice, congratulating the recipient, requesting information, asking question, etc. are various purposes they can serve. इनफॉर्मल लेटर बेसिकली किसको लिखा जाता है? फैमिली, फ्रेंड्स को और कैजुअल कम्युनिटी की जो नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो आपका जिनके साथ. ठीक है. सेकेंडली आप इसमें करना क्या होता है? यू हैव टू कन्वे एनी काइंड ऑफ मैसेज, यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ न्यूज, यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस, you want to congratulate the recipient, and you want any kind of information, like etc. ठीक है. It is personal letter or email written to whom you are familiar, like friends, sibling, parents, or any other close one. While writing an informal letter or casual email, one can afford to be friendly and make use of personal or emotional tone. What kind of tone you have to use? It must be personal and emotional tone. ठीक है. आई होप यू गाइज गॉट इट कि यार इनफॉर्मल लेटर क्या होता है. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल राइटिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट पैटर्न का डिफरेंस है. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा. सेकेंडली, इनफॉर्मल लेटर, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली और कैजुअल कम्युनिटी. आपको अपना इसमें मैसेज कन्वे करना होता है. ठीक है, डिफरेंस करना सीख लो प्लीज. स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. बहुत जना मोस्टली स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होके भी टेस्ट देते हैं तो वो गलत पैटर्न लिख देते हैं. ठीक है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. So basically, it's a part of a syllabus paper 2 directed writing section A. It will contain 25 marks. One compulsory question is given. ठीक है. Stimulus of 400-450 words will be given in split or single text. ठीक है. जैसे अब तक के हमारे 3 पेपर्स अब तक के रिलीज हो चुके हैं. नो, 4 पेपर रिलीज हो चुके हैं. मई जून 2024 का वेरिएंट जो है हमारा, और एक दूसरा वेरिएंट. ठीक है, और अक्टूबर नवंबर का. तो 4 अपलोड हो चुके हैं और उनमें अलग से सिंगल टेक्स्ट अभी तक नहीं आया, स्प्लिट टेक्स्ट आया है. सेकेंडली, जो स्टिमुलस को उसको किया जा रहा है उस टेक्स्ट को किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, 400 and 450 वर्ड्स का होगा. ठीक है, वो टेक्स्ट. मार्क्स कैटेगोरिकली डिवाइडेड एंड अवॉर्डेड. ठीक है, किस तरीके से मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी. ठीक है. Text type will be informal letter and email, report, article, speech, formal letter and email. ठीक है. Now let's see further. So here I have made a small categorical mark distribution जिससे आपको समझ में आ जाए कि basically examiner आपको award किस तरीके से कर रहे हैं and which point you have to work a lot ताकि आपके you can achieve a good grade. Okay. So here's a categorical mark distribution. So categorical mark distribution is divided into two parts.
Number one is reading component and the second is writing component. Reading component contains 10 mark and writing contains 15 marks. And reading component is contain 40% weightage, whereas writing component contain 60% weightage. ठीक है, अब रीडिंग और राइटिंग दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा मैं वेरी करती हूँ, ठीक है। सेकेंडली रीडिंग से क्या होता है, रीडिंग से आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, और आपके सिलेक्शन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। रीडिंग कंपोनेंट से आपके एनालिसिस चेक किए जाएंगे और इवैल्यूएशन चेक की जाएगी आपके टेक्स्ट में, जो आप नॉट अ टेक्स्ट, जो आप लिखोगे ना राइटिंग, तो उसको चेक किया जाएगा। सेकेंडली राइटिंग कंपोनेंट से जो है ना, writing components contain 60% weightage and complex development will be of 3 marks, organization will be of 1 marks, tone and register will be of 2 marks। ठीक है, टोन एंड रजिस्टर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। टोन रजिस्टर में बस सिर्फ 3 थे, डिस्कर्सिव, परसुएसिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने टोन रजिस्टर यूज करना है। देन स्ट्रक्चरल वैरायटी जो है वो 3 नंबर की होती है। स्ट्रक्चरल वैरायटी में आगे बता देती हूँ क्या होता है। वोकैबुलरी विल बी ऑफ 3 मार्क्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर विल बी ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स बनते हैं, 10 एंड 15 होल सम अप टू 25 मार्क्स, ठीक है। आई होप यू गाइस गॉट इट कि किस तरीके से मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। स्ट्रक्चर वैरायटी बेसिकली होता क्या है। स्ट्रक्चर वैरायटी बेसिकली इनको ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्टेड। स्ट्रक्चर वैरायटी में क्या होगा, और परेशान नहीं हो, मैं ये सब स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो। कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। सेकेंडली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ईडियम्स, हाइपरफोरा एंड कोलन। ये जो सारे जो है ना, you guys will be using them in your informal letter and email writing, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आप जब तक ये यूज नहीं करोगे आपको मार्क स्ट्रक्चर वैरायटी के अवार्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गाइज गॉट इट। मैंने आई नो कि मैंने डिसाइड किया था कि जो है मैं स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन हर चीज़ को आराम आराम से लेके चलूँगी। दैट मेक्स थिंग्स रियली क्लियर टू यू ऑल गाइज। I hope you guys got it, and inshallah I will try my best to upload videos on daily basis, and I will meet you guys in my next video. But before leaving, please subscribe to my YouTube channel and share it with your friends and hit the like button. And yeah, I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.